Yes. So I had given the answers in the end. ठीक है? So you guys tell me which question should I discuss? सारे नहीं करूंगा, आंसर दे दिए. So out of one, yeah, you just let me know the question number जहाँ पे problem है. I shall directly go to that question. Sir, 9 and 10. 9, question number 9 कह रहे हो? 9 and 10 both. 9 and 10 both, okay. Let me start with 9. 5, okay. Question number 9 is: a man is crossing a river flowing with a velocity of 5. He reaches a point directly across at a distance of 60 meters in 5 seconds. His velocity in still water would be, okay. रिवर की वेलोसिटी है 5, ठीक है. आदमी ने मूव करना शुरू किया ये वाले डायरेक्शन में, मान लो वेलोसिटी v से, और व्हाट वी नो, ये जो रिवर है इसकी विड्थ है 60 मीटर्स. इसको क्रॉस करने में लगा 5 सेकंड. मतलब द वेलोसिटी इन दिस डायरेक्शन शुड बी 12 एंड द वेलोसिटी इन दिस डायरेक्शन शुड बी व्हाट. अगर ये परपेंडिकुलर जा रहा है तो v का ये कंपोनेंट शुड बी 5, तभी ये दोनों कैंसिल हो पाएगा, राइट. सो दिस इज बाय द वे, if I say this angle is theta, so 12 would be v cos theta and 5 would be v sin theta. So यहाँ से v की जो वैल्यू आ रही है that is 13 meters per second, isn't it? That is 13 meters per second. So option B is correct. Y component निकालेंगे, total distance divided by speed से, speed is 5. Sorry, my mistake. Total distance by 5 सेकंड लगे क्रॉस करने में. So y direction में velocity should be 12 and x direction में it should be 5, as we don't expect any horizontal drift. Clear? Yes, sir. In question number 10, we have in the figure shown, the two projectiles are fired simultaneously. What should be the initial speed of the left side projectile for the two projectiles to hit in midair? ठीक है? इसकी speed, what should be the initial speed of the left side projectile? अच्छा, for the two projectiles to hit. अच्छा, okay, sorry, this is given as 20. ठीक है. तो दोनों प्रोजेक्टाइल्स को हिट करना है, राइट. तो मैं पहले दोनों प्रोजेक्टाइल्स की ना स्पीड को लिख देता हूं एक्स और वाई डायरेक्शन में. तो 20 का क्या क्या कंपोनेंट होगा? इस तरफ कितना होगा? 20 √2 cos 45 1/√2 ना. हाँ 20 yes 10√2 and this would also be 10√2. इसके लिए क्या होगा? इसका वर्टिकल कंपोनेंट कितना होगा? sin 30 ना, u √3/2 एंड हॉरिजॉन्टल कितना हो जाएगा? u cos 60 मतलब u/2. This gap between them is 10 meters. ठीक है. What should be the initial speed of the left side projectile for the two projectiles to hit in mid-air? Mid-air में दोनों को टकराना है. मतलब with respect to one projectile, मान लो मैं प्रोजेक्टाइल A इसको कह रहा हूं, this is projectile A and this is projectile B. With respect to projectile A, projectile B कैसा दिखेगा? Moving in a straight line. एग्जैक्टली. गैप का यहाँ पे यूज नहीं है, बिल्कुल. कभी कभी डेटा बेकार में भी क्वेश्चन में दिया होता है. सो यहाँ पर द मतलब इसको ऑब्जर्वर बनाएंगे तो 10√2 नीचे लगाना पड़ेगा. सो वर्टिकल में इट विल एक्चुअली बी √3/2 u minus 10√2. ठीक है. और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या होगा? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इट वुड बी 10√2 इधर लगना चाहिए,
So this way, it is 10 root 2 minus u by 2. ठीक है? So this thing, I know अगर a के respect में b की बात करें, so a relative between them is 0. दोनों particles अगर air में होंगे, so a relative between them is 0. तो सिंपल सी बात है, a relative 0 है, तो मोशन कैसा होगा b का? The motion of one projectile as seen by other projectile is a straight line because a relative 0 होता है, मतलब the relative velocity is constant. So the motion is a straight line. मतलब b को a से कोलाइड भी करना है और स्ट्रेट लाइन में भी मूव करना है. मतलब अगर ये किसी एंगल पे जाएगा ना, तो a से कभी कोलाइड नहीं कर पाएगा. अगर इसे a से कोलाइड करना है, तो इसको a के तरफ ही मूव करना पड़ेगा. इसका मतलब हुआ b का a के Y component 0. there should be no y component. So simply root 3 u by 2 is equal to 10 root 2. So u की वैल्यू आ जाएगी 20 root 2 by 3 meters per second. ठीक है? और ये जो u की वैल्यू है, अगर 10 मीटर्स का यूज कब होता? जब तुमसे पूछता कितने टाइम के बाद कोलिजन होगा. हाउ टू फाइंड आउट टाइम फॉर कोलिजन? Sir, distance by x component. x डायरेक्शन में जो रिलेटिव वेलोसिटी है, दैट इज 10 रूट 2 माइनस u by 2. तो यहाँ पे तुम्हें बस u का वैल्यू पुट कर देना है, एंड दिस विल गिव यू द टाइम ऑफ कोलिजन. सर वो मैक्सिमम हाइट पे कोलाइड कर रहा है तो डायरेक्टली नहीं बोल सकते कि रूट 2 सेकंड. ये मैक्सिमम हाइट पे है. हाउ डू यू नो? हाँ सर, मिड एयर लिखा हुआ है. मिड एयर मतलब एयर में कहीं पे भी. ठीक है, हो सकता है ये प्रोजेक्टाइल ऐसे हो रहा हो और इसका मैक्सिमम हाइट कहीं और है. मिड एयर मींस इट Yes, sir. कोलाइड समवेयर इन एयर. इट डजंट मीन कि वो हाईएस्ट पॉइंट है. हाईएस्ट सर पॉइंट दोनों का डिस्प्लेसमेंट इक्वेट कर सकते हैं. कर सकते हैं. डिस्प्लेसमेंट इक्वेट करने से बेटर है. मुझे पता है रिलेटिव एक्सेलरेशन अगर 0 है, डिस्प्लेसमेंट इक्वेट करने से बेटर है कि मैं वेलोसिटी इक्वेट कर दूं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट सेम होने के लिए यू नीड टू हैव द सेम वेलोसिटी, इजंट इट? तो यहां तुम सिंपली ये भी कर सकते थे, टाइम t के बाद दोनों का y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट सेम रहेगा. y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन सेम है, तो y डायरेक्शन में वेलोसिटी भी सेम होनी चाहिए. अगर मैं इतना ही लॉजिक यूज करूं, तो मुझे यहां से आंसर मिल जाएगा. सर क्या चीज एक बार फिर रिपीट करिए. मैंने बताया कोलाइड करने के लिए क्या होगा, दोनों को सेम हाइट होना पड़ेगा ना. हाँ. मतलब दोनों का डिस्प्लेसमेंट y डायरेक्शन में सेम. y डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? ये minus यू साइन थीटा हो गया. g दोनों के लिए सेम है, टाइम दोनों के लिए सेम है, y दोनों के लिए सेम है, तो दोनों के लिए ui भी क्या होना चाहिए? अच्छा हाँ सेम हो जाएगा फिर. तो शायद हम इतना किए बिना आंसर निकाल लें. ओके सर. ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 5 कहा था किसी ने? 5 तो पैराग्राफ का पार्ट है, देखते हैं. Sir, 13 भी. ठीक है, चलो आते हैं उसमें. Two projectiles are thrown simultaneously in the same plane from the same point. बहुत बढ़िया. Their velocities are v1 and v2 at angles θ1 and θ2 respectively from the horizontal. ठीक है, दोनों सेम प्लेन फ्रॉम द सेम पॉइंट. ठीक है, then answer the following questions. If v1 is equal to v2 and θ1 greater than θ2, particle 2 moves under part. अच्छा, मतलब अगर हम ऐसे कुछ करें, दोनों को सेम स्पीड से हमने प्रोजेक्ट किया. ठीक है, दोनों को मान लो u और u से हमने प्रोजेक्ट किया, एंड सो कैसा यहाँ पे मोशन, मतलब ऐसा अगर ये रहेगा, एंड तो इसमें हमको देखना है कि विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. ठीक है, सो θ1 मतलब दिस इज पार्टिकल 1 एंड द सेकेंड वन इज पार्टिकल 2. पार्टिकल 2 मूव्स अंडर पार्टिकल 1. Slope of trajectory of 2 with respect to 1 is always positive. Okay, both the particles will have the same range
if theta 1 is greater than 45 and theta 2 is less than 45 and theta 1 plus theta 2 is 90. Okay, makes sense? अगर complementary angles पे हो, so what will happen? Both of them will रेंज सेम होगा. have same range. तो मतलब C तो सही है, मतलब ये नहीं हो सकता, right? This is correct. Okay, particle 2 moves under particle 1. अगर दोनों के पास same speed है, so particle 2 moves under particle 1. ये करेक्ट सर. करेक्ट तो है, बट मैं ये कह रहा हूं कि अगर ऐसा भी तो हो सकता है, एक पार्टिकल ऐसे जाए एंड जो ज्यादा वर्टिकल होगा उसका टाइम ऑफ फ्लाइट ज्यादा होगा, सो टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब इट विल बी ऑलवेज हायर एज कंपेयर टू द फर्स्ट पार्टिकल. ठीक है, सही है. टाइम ऑफ फ्लाइट सोचो, टाइम ऑफ फ्लाइट इज 2u sin थीटा बाय जी. ठीक है, तो जिसके लिए थीटा ज्यादा होगा उसके लिए टाइम ऑफ फ्लाइट ज्यादा होगा. तो यहाँ पे T1 शुड बी ग्रेटर देन T2 क्योंकि थीटा 1 इज ग्रेटर देन थीटा 2. तो टाइम ऑफ फ्लाइट अगर ज्यादा है, सो व्हाट विल हैपन? जो फर्स्ट पार्टिकल का y का डिस्प्लेसमेंट है और सेकंड पार्टिकल का y का डिस्प्लेसमेंट है, सेकंड पार्टिकल विल ऑलवेज बी बिलो द फर्स्ट पार्टिकल. फर्स्ट पार्टिकल ज्यादा हाइट पे होगा, सेकंड पार्टिकल उसके हमेशा नीचे रहेगा. ठीक है, सो दैट लुक्स टू बी करेक्ट. एंड द स्लोप ऑफ द ट्रेजेक्टरी इसमें रिलेटिव वेलोसिटी भी निकाल के चेक कर सकते हैं ना? कर सकते हैं, बिल्कुल. सर इसको मैक्सिमम हाइट से नहीं देख सकते? मैक्सिमम हाइट मतलब वही मैक्सिमम हाइट का जो फॉर्मूला होता है उसमें भी जो थीटा साइन स्क्वायर थीटा मतलब वो वाला चीज Exactly. कंपेयर करके इसका मैक्सिमम हाइट ज्यादा होगा, इसका मैक्सिमम हाइट कम होगा. बट यहाँ पर ये मतलब ऐसा भी तो हो सकता है ना, एक पार्टिकल मान लो ऐसे आ जाए और दूसरा कुछ ऐसे करके जाए. हाँ, बट देखना कि कितना टाइम तक कौन जाता है ऊपर. एग्जैक्टली, तो जो ज्यादा टाइम तक एयर में रहा है दैट विल बी व्हाट हायर. मतलब मान लो तुमने एक पार्टिकल को फेंका ऊपर विद 20 मीटर्स पर सेकंड और दूसरे को फेंका ओनली विद 10 मीटर्स पर सेकंड, तो क्या होगा? 20 मीटर्स पर सेकंड वाला हमेशा हायर रहेगा एज कंपेयर टू 10. जिसकी y की वेलोसिटी ज्यादा है दैट विल बी हायर एज कंपेयर टू द पार्टिकल जिसकी y की वेलोसिटी कम है. So the statement is fine. The slope of the trajectory of particle 2 with respect to particle 1 is always positive. पार्टिकल 2 के रेस्पेक्ट में मतलब क्या होगा? मान लो मैं ऐसा देख रहा हूं तो एक प्रोजेक्टाइल कुछ ऐसा होगा, एक थोड़ा ऐसा करके रहेगा, दूसरा थोड़ा फ्लैटिश टाइप का रहेगा, ऐसा कुछ थोड़ा ज्यादा फ्लैट टाइप का कुछ रहेगा. तो अगर ऐसा बात करो तो फर्स्ट वाले का स्लोप क्या रहेगा? स्लोप ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इज व्हाट? दिस इज द x वेलोसिटी एंड y वेलोसिटी. अगर मान लो दिस वी नो दिस इज u cos थीटा 1 और y डायरेक्शन में क्या हो जाएगा टाइम t के बाद? u sin थीटा 1 माइनस gt. तो स्लोप अगर मैं एक का लिखूं tan थीटा, ये होता है वेलोसिटी इन y डायरेक्शन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी इन x डायरेक्शन. ठीक है, वेलोसिटी इन y डायरेक्शन इज u sin थीटा 1 माइनस gt divided by u cos थीटा 1. सो ओवरऑल क्या आ रही है? जो स्लोप की वैल्यू है दैट इज tan थीटा 1 माइनस gt बाय u cos थीटा 1. ठीक है, सो दिस इज द स्लोप ऑफ द फर्स्ट वन एंड स्लोप ऑफ द सेकेंड वन हम बाद में ग्राफ से भी देखेंगे, पहले इसको मैथमेटिकली हम चेक कर लेते हैं. दैट शुड बी tan थीटा 2 माइनस gt बाय u cos थीटा 2. ठीक है, टाइम दोनों का मतलब हम किसी पर्टिकुलर टाइम पे देख रहे हैं. स्लोप ऑफ ट्रेजेक्टरी ऑफ पार्टिकल 2 विथ रिस्पेक्ट टू पार्टिकल 1 इज ऑलवेज पॉजिटिव. यहां पे गड़बड़ लग रहा है क्योंकि
किसका स्लोप ज्यादा होगा यहाँ पर? मैं किसी टाइम अगर एक पर्टिकुलर टाइम पे चेक करूं, so I can clearly see that this part, the first particle will have a greater slope as compared to the second particle. तो किसका स्लोप ज्यादा पॉजिटिव लग रहा है ये बताओ? और पार्टिकल 1 या पार्टिकल 2? 1 का सर। 1 का ज्यादा पॉजिटिव यहाँ पे लग रहा है। एंड सिंपली इस साइड अगर हम देखें तो 1 का तुम्हें ज्यादा नेगेटिव लगेगा एज कंपेयर टू दिस। मतलब फॉर दिस, ये जो नीचे वाली ट्रेजेक्टरी है ना, इसके लिए दिस इज मोर फ्लैटिश, और ऊपर वाला ट्रेजेक्टरी वो थोड़ा सा ज्यादा, यहाँ पर जो स्लोप है ये ज्यादा स्टीप रहेगा। तो 1 का स्लोप ज्यादा है एज कंपेयर टू 2। तो यहाँ पे बोल रहा है 2 इज पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू 1, विच इज नॉट करेक्ट। ठीक है, सो इट हैज टू बी ऑप्शन बी। और अगर हमें मैथमेटिकली दिखाना हो तो स्लोप को हम ऐसे लिखेंगे और देखेंगे कौन सा थीटा बड़ा है। यहाँ देख सकते हो ना, ये जो कॉस थीटा है ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा? सेक, राइट? सेक थीटा 2। ठीक है, दोनों का यहाँ पे डिफरेंस ले सकते हो। फाइन, सेम आ रहा है मैथमेटिकली भी। वही आएगा, सेम सेम आएगा। बट ऑब्वियसली एग्जाम में हो तो इट्स बेटर टू ड्रॉ 2 प्रोजेक्टाइल्स एंड देन चेक कि किसका स्लोप ज्यादा स्टीप आ रहा है या फिर स्लैंट आ रहा है। ऑलराइट, Yes. एनीथिंग एल्स? Would you do this question? All of you? सर 13 13. ओके, तो यहां पर रेन की अगर हम बात करें, सो रेन हैज गॉट Vx एंड Vy। ठीक है, तो ये जो 5 से जा रहा है, इस 5 वाले की स्पीड क्या होगी अभी इस समय? हॉरिजॉन्टल 5 cos 53। व्हाट इज cos 53? 0.6, मतलब 3 मीटर्स पर सेकेंड ऐसे, और 4 मीटर्स पर सेकेंड ऊपर जाते हुए। इस कंडीशन में द पर्सन सीज द रेन मूविंग वर्टिकली। सो रेन इज मूविंग वर्टिकली, दैट मीन्स, एक मिनट, Vx equal to 3। एग्जैक्टली, Vx की वैल्यू में मिल जाएगी सीधे सीधे 3। ठीक है, ओके, तो अभी हमारे पास तो ये पता चल गया कि दैट दिस Vx is 3, Vy we don't know, Vy will check, so this we know that it is 3 meters per second. Now the person is moving on this flatter part with a velocity of 5 meters per second. तो इस इंसान को रेन कैसा देखना चाहिए? 5 अगर इसको रोक दें, 5 यहाँ पे उल्टा लगा दें, तो रेन की स्पीड होनी चाहिए 2 इधर, और should it be Vy down? और रेन वर्टिकल से कितने एंगल पे है? ये थीटा। व्हाट इज tan थीटा? 2 by Vy, and this is given as half. So from this you get Vy as what? 4. हमने ये भी कैलकुलेट कर लिया, दैट इज 4 मीटर्स पर सेकेंड। अब बोला गया कि जब ये आदमी नीचे उतर रहा है ना, इसको रेन दिख रहा है हॉरिजॉन्टली मूव करता हुआ। ठीक है, तो इसकी जो वेलोसिटी v नीचे है, तो v के कंपोनेंट्स क्या क्या होंगे? दिस इज v cos 30, मतलब v √3/2, एंड दिस इज v sin 30, मतलब v/2। सो रेन इसको दिख रहा है कैसा? हॉरिजॉन्टली मूव करता हुआ। मतलब इसकी जो वर्टिकल वेलोसिटी है और जो रेन की वर्टिकल वेलोसिटी है, आर दे इक्वल? Yes। मतलब v/2 इज इक्वल टू 4, एंड v की वैल्यू कितनी आ रही है? 8। So v we know, and what is the relative velocity in x direction? This is v root, मतलब ये कितना 4√3 हो गया ना,
This is 4√3 meters per second and this is 3 meters per second. So relative कितना हो जाएगा? (4√3 minus 3 meters per second. Yeah. Clear? Yes, sir. Yes. Okay. This is one of the toughest Rain Man setups, right? If you can handle this, तो बाकी में problem नहीं होनी चाहिए. Any other question where you need my help? बाकी हो गया? हाँ सर वो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है तुमसे हो गया तो. Yes, sir. गुड एंड इतना हमने सीखा है तो हो जाना चाहिए था. ऑलराइट, ठीक है. So are you feeling a bit more confident in relative motion as compared to before? Yes, sir. Yes, यस सर चलो ठीक है. ओके. एंड कुछ पार्ट को हो सकता है तो मैं दोबारा देखना पड़े. सो ऑब्वियसली द वीडियोस आर देयर. यू कैन वॉच द रिकॉर्डिंग्स अगेन सो दैट अगर कहीं पे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो या कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो प्रेफरेबल ये है कि क्लास में पूछो कहीं पे प्रॉब्लम हो तो, या अगर दोबारा देखना है तो यूट्यूब पे है, यू कैन वॉच दोस वीडियोस. ठीक है. तो आई थिंक हमने आगे जो पार्ट प्लान किया था उनमें से how many of you feel that you face issues in two block setup? I see one raised hand. तो क्लासेस हमारे पास लिमिटेड हैं, so the topics that we were going to pick, I think एक मिनट मैंने एक बनाया हुआ था PDF. Does it gone? थोड़ा ढूंढना पड़ेगा, PDF तो मिल नहीं रहा है. Anyways, ठीक है. Quite a few people are saying कि two block setup में problem है. So नहीं, मैंने जो पिक किया था it was two block setups, cavity related setups. Cavity वाले में हम लोग क्या कर रहे थे? We were trying to figure out the center of mass. We would also try to calculate the moment of inertia, the gravitational field. Cavity वाले setups में क्योंकि सब में same concept लगता है. So I was thinking कि maybe I should go ahead with that. और टू ब्लॉक लोगे तो आई डोंट थिंक कि टू ब्लॉक के बाद आज कुछ और हो पाएगा. सो डू यू वांट टू गो विद दैट कैविटी सेटअप या फिर टू ब्लॉक सेटअप? आई वांट योर ओपिनियन. एंगुलर मोमेंटम, ओके, अच्छा, हाँ, ये समवन हैज सेंट मी दैट. राइट. वर्क एनर्जी थ्योरम, सेंटर ऑफ मास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर कैविटी सेटअप्स. ओके, सो वर्क एनर्जी थ्योरम को मैं थोड़ा सा पोस्टपोन कर रहा हूं. कैविटी रिलेटेड सेटअप्स, एंगुलर मोमेंटम, इलिप्टिकल ऑर्बिट्स. ठीक है. सो हम लोग पहले COM, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एंड मैं साथ साथ ग्रेविटेशनल फील्ड भी ऐड कर देता हूं बिकॉज कई बार हमें कैविटी वाला जो सेटअप होता है या कोई स्फीयर है उसके वजह से हमें ग्रेविटेशनल फील्ड निकालनी होती है स्फीयर के बाहर या फिर कैविटी के अंदर. सो वी विल टेक दो सेटअप्स एज वेल. ठीक है. तो आज हम लोग कैविटी वाला डील करते हैं एंड अगली वाली क्लास में आई विल स्टार्ट विथ वर्क एनर्जी थ्योरम और उसके बाद उसमें हम एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन भी डिस्कस करेंगे. ठीक है. चलो, तो टॉपिक्स बहुत सारे, तो बहुत सारा टाइम है नहीं हमारे पास. दैट्स द प्रॉब्लम, बट कोई दिक्कत नहीं है. विल कवर एज मच एज पॉसिबल.
and even in future we'll try to have such open sessions so that अगर कुछ topics को हम ले पाए and people who are interested to learn they can and they should get benefited. That's what my plan is. ठीक है. तो ध्यान बिल्कुल यहाँ होनी चाहिए. कैविटी हम लोग दोनों लेंगे, ग्रेविटेशन भी, सेंटर ऑफ मास भी और मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी. ठीक है, कॉन्सेप्ट लगभग सेम है, तो मतलब उसी कॉन्सेप्ट से हम लोग ट्राई करेंगे तीनों को सीख पाए. ठीक है, चलो तो पहले हम लोग विल ट्राई टू फिगर आउट द सेंटर ऑफ मास फॉर कैविटी सेटअप्स और ट्रंकेटेड ऑब्जेक्ट्स. राइट, तो सबसे पहले बात ये होती है दैट ट्रंकेटेड ऑब्जेक्ट्स मतलब पूरे ऑब्जेक्ट से हमने कुछ पोर्शन को काट के बाहर कर लिया. अब कैविटी नॉर्मली कैसा होता है? कैविटी इज जब कोई भी शेप हो, इस शेप से तुमने कुछ पार्ट बाहर किया है और जितना पोर्शन हमने बाहर किया ना, दैट इज नॉट विजिबल फ्रॉम आउटसाइड. दीज आर कैविटी सेटअप्स. ठीक है, बट वी कैन हैव केसेस जहां पर मान लो एक देयर वाज अ हेमिस्फीयर और इस हेमिस्फीयर में से मैंने एक कोनिकल पोर्शन कट करके बाहर कर लिया. राइट, तो यहां पर हम बोलते हैं दिस हैज बीन ट्रंकेटेड, दिस हेमिस्फीयर हैज बीन ट्रंकेटेड and the portion taken out is actually a cone. ठीक है, so this is the logic. इस केस में या ऐसे किसी भी केस में if you have to figure out the value of center of mass, उसका एक बहुत ही सिंपल सा तरीका होता है. that method is मतलब जितना पार्ट हमने बाहर किया ना, हम उस पार्ट का हेल्प लेंगे, बिकॉज वो पार्ट होता तो हमारा काम काफी आसान होता. राइट, एग्जैक्टली. तो जैसे मान लो वी स्टार्ट विथ अ डिस्क. आई नो मोस्ट ऑफ यू हैव लर्न दिस. से वी स्टार्ट विद द डिस्क एंड ये डिस्क में हम क्या कर रहे हैं? इसके लिए हम सेंटर ऑफ मास पता है हमें. ठीक है, सेंटर पे कोई प्रॉब्लम नहीं है. प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब ये डिस्क में मैं कुछ पार्ट को कट करके बाहर कर दूं. अगर मैंने इतने पार्ट को कट करके बाहर कर दिया, देन द प्रॉब्लम अराइजेस बिकॉज मास अब इस लाइन के अबाउट सिमेट्रिक नहीं रहा. एक तरफ ज्यादा मास हो गया, एक तरफ कम मास हो गया. तो अब हमें मान लो सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करना है, तो कैसे करें कैलकुलेट? तो हमने कहा भाई अगर यहाँ पे ना ये पूरा का पूरा डिस्क होता तो मुझे सेंटर ऑफ मास बताने में मुश्किल नहीं होती. इज दैट करेक्ट? इफ यू हैड एन एंटायर डिस्क लाइक दिस, तो सेंटर ऑफ मास में आराम से बता सकता था, इट इज एट द ओरिजिन. लेकिन फूटी किस्मत हमारी, यहाँ पे एक कैविटी बना दिया गया और उस कैविटी ने हमारी सारी इक्वेशन को खराब कर दिया. बहुत बुरा हुआ. लेकिन इसको डील कैसे करें? तो बहुत ही सिंपल सी बात है. यहां पर क्या होगा, जितने पोर्शन में मास है, जितने पोर्शन को मैं यहाँ पे शेड कर रहा हूं, जितने भी पोर्शन में यहाँ पे मास है, ये मास तो यहाँ पर एक्चुअली प्रेजेंट है. कैविटी में क्या मास प्रेजेंट है? जो कटआउट पोर्शन है, देयर इज नो मास प्रेजेंट. मास है ही नहीं वहां पे. मास नहीं है इसलिए तो तुमने मास को वहां से काट के बाहर कर दिया ना. देयर इज नथिंग देयर. तो हमने कहा कि भाई यही तो प्रॉब्लम हो रही है. हमने कहा यहाँ पे कितना मास है? 0 मास. तो मैं कह सकता हूं जीरो की एक बहुत ही ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी होती है. तुम जीरो को
किसी भी दो वैल्यूज का डिफरेंस लिख सकते हो। और ये m क्या है? m इज द मास जो इतने दूर में प्रेजेंट था। जितने मास को तुमने कट करके बाहर कर लिया। मैंने कहा कि मतलब ये जो पोर्शन टेकन आउट है, यहाँ पे एक्चुअली 0 है मास, लेकिन मैंने कहा कि यहाँ पर प्लस एम भी प्रेजेंट है और यहाँ पर माइनस एम भी प्रेजेंट है। ठीक है, ओके। मैंने कहा भाई मुझे माइनस एम ना बहुत परेशान कर रहा है, तो मैं क्या करूंगा, मैं प्लस एम को रखूंगा एक साथ और मैं इस कटआउट पोर्शन के साथ इसको मिक्स कर दूंगा। जैसे ही मैंने इस कटआउट पोर्शन में प्लस एम को मिक्स किया, व्हाट हैपेंस? क्या ये पूरा का पूरा डिस्क बन गया? कोई दिक्कत नहीं। प्लस ये माइनस एम बोला, भाई व्हाट अबाउट माय राइट्स, मेरी कोई जिंदगी बची नहीं क्या? हमने कहा बिल्कुल है। तुम्हें सेपरेटली हम डील करेंगे, बिकॉज यू आर अ लेसर प्रॉब्लम इफ यू आर अलोन। ये जो कटआउट पोर्शन था ना, हमने बोल दिया कि इस कटआउट पोर्शन में प्लस एम भी प्रेजेंट है और माइनस एम भी प्रेजेंट है। जब प्लस एम डालेंगे, ये तो पूरा भर गया, ये पूरा का पूरा पहले जैसा ही डिस्क बन गया। और ये जो माइनस एम बचा ना, हमने इसे ऐसा छोड़ दिया। अब क्या फायदा होगा? मान लो पूरे डिस्क का मास कैपिटल एम है, तो मैं इस पूरे डिस्क को मान सकता हूं इट इज कैपिटल एम प्लेस्ड एट इट्स सेंटर, और ये बाकी पोर्शन को मैं मान सकता हूं दैट इट इज माइनस एम प्लेस्ड एट व्हाट डिस्टेंस? मान लो ये सेंटर और पेरिफेरी के बीच का पॉइंट है, सो इट वुड बी प्लेस्ड एट r/2, 0। और अगर मुझे यहाँ पर x सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करना है, तो व्हाट इज दैट x सेंटर ऑफ मास? प्लस माइनस m इंटू r/2 डिवाइडेड बाय m प्लस माइनस m। ठीक है, दिस विल गिव यू द x कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास। सिमिलरली हम y कोऑर्डिनेट भी निकाल सकते थे। ठीक है, आर यू गेटिंग द ब्रॉडर लॉजिक? किस तरह से हम प्रोसीड करेंगे? यस सर। बाकी एग्जांपल्स हम करेंगे तो Yes, sir. it would be clear to us. Okay, so let us start with some examples. थोड़ा जल्दी करना है सबको. Let me see how fast you can solve. Question number 1. Question number 1 is a uniform disk of radius r. इसमें हमने क्या किया? We have cut out a portion of radius r/3. ठीक है? This is the origin. Tell me the x coordinate of center of mass. जल्दी. एक मिनट में आंसर चेक कर रहा हूँ.
तो यहाँ पे एक डिस्क था, हमने 1 सेंटीमीटर रेडियस का पोर्शन को कट करके बाहर कर दिया, उसका सेंटर पॉइंट ओ से, विच इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द डिस्क, उससे 2 सेंटीमीटर दूर है. सो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन फ्रॉम ओ. आई एम गेटिंग आंसर्स. वेरी गुड. ओके, lot of different answers. चलो कुछ लोग कर रहे हैं तो मैं अभी बता नहीं रहा हूँ. Take 1 more minute, then we'll talk about the answer. Apurv, you need to write the value of small m in terms of capital M. Areas पे depend करेगा, करके देखो. ओके सर. So many answers, but I can't see a lot of correct answers. सही आंसर किसने दिया है? लेट मी चेक. सही आंसर दिया है शौर्य डे. योर आंसर इज करेक्ट. Is the Bangla pronunciation Shorjo? Is it correct? Yes, sir. It was. I'm from Bengal only. Yeah, I know. It was Shorjo. converted here. Okay, यहाँ कन्वर्ट हो गया. मतलब एक्चुअल नाम तुम्हारा शौर्यो डे है ना? Yes, sir. ओके चलो. नहीं, यहाँ तो सब थोड़ा हिंदी वाला प्रोनाउंसिएशन बोलते होंगे. That's why. Okay. Rishit, I guess you're calculating the moment of inertia, are you? We're looking for the center of mass. अब बाकी लोगों का आंसर थोड़ा मुझे डाउट लग रहा है. You need to check again. Are you messing up with the mass of the cavity? एक बार चेक करो वो. Cavity का mass तुमने सही लिया या नहीं? You're getting the same thing. अच्छा, what is the negative mass that you people are taking? By the way, this is a disk. Have I written that? एक मिनट. अच्छा. मैंने ठीक है. एक मिनट रुको. लेट मी चेक अगेन. माय मिस्टेक, सॉरी. मैंने डिस्क दे दिया, बट मेरे दिमाग में स्फीयर वाला आंसर चल रहा था. शायद वहीं से गड़बड़ हुई है. अगर डिस्क है ये तो 12 is correct then. My mistake. Correction. I think Shaurya has done the same mistake जो मैंने mentally किया था. So third, you're getting R by 39 by assuming that as a sphere, right? Probably. R by 12 is correct. My mistake. I correct myself. R by 12 is the correct answer. And by the way, it should be minus R by 12. बहुत लोगों ने plus लिखा है. Because it has to be behind the origin. Exactly. ठीक है. R by 12 वाले सही है. मेरे दिमाग में स्फीयर चल रहा था तो मैंने गलती से R by 39 बोल दिया.
For a sphere, it would have been minus r by 39. ठीक है? So if I say that the mass of the entire disk is m, then r by 3 radius के portion का मैं mass आराम से calculate कर सकता हूँ. If that is m, so I can say m is equal to m by pi r square into pi r by 3 का square. So that is m by 9. Right? So m by 9 is the mass. तो पूरा का पूरा center of mass would be at 0, 0. Right? और minus m by 9 का center of mass would be at 2r by 3 comma 0. And you can use the formula for the x center of mass as m into 0 minus m by 9 into 2r by 3 divided by m minus m by 9, which is actually 8m by 9. And on solving this, we should get that as r by 12. ठीक है, सभी लोगों ने कर लिया है. So I hope that is fine. सेकंड का आंसर क्या मिला है? चलो सेकंड बताओ जल्दी. तो एक बार दिखा दीजिए फर्स्ट का सॉल्यूशन फिर से. मयंक, अच्छा सेकंड क्वेश्चन में क्वेश्चन पूछना है क्या है? नहीं फर्स्ट का सॉल्यूशन बोलते एक बार दिखा दीजिए. फर्स्ट का सॉल्यूशन. Okay, thank you, sir. Okay. Shashank, your answer is correct. Very good. Mayank, I think you need to check the answer once. थोड़ा दिमाग लगाओ, सारे सवाल डिफिकल्ट नहीं होते. चलो एक मैं क्वेश्चन देता हूँ. लेट मी सी हु कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन फास्ट. एक स्क्वायर है, स्क्वायर प्लेट. व्हाट हैव डन, मैंने इसमें से एक दिस इज अ स्क्वायर, दिस यूज्ड टू बी अ स्क्वायर प्लेट. मैंने इसमें से एक आइसोसेलेस ट्रायंगल को कट करके बाहर कर दिया. ठीक है, इट्स एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, मतलब दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड. राइट, दिस इज पॉइंट ए. ये दिया हुआ है कि सेंटर ऑफ मास ऑफ द remaining portion is at A. Find if this is X and this is L, you need to find X by L. Getting my point? X by L पता करना है. In the meanwhile, जिनका second हो गया हो, they can tell me the answer. So Shreyanshu, very good. Your answer is correct. Second one, right? Yes, sir. Good. Sachin, I think you're complicating it. My voice is low. Is anyone else facing the problem? No, sir. Okay. You might एक बार disconnect होके वापस से मीटिंग में आ जाओ. Maybe that might help. सर सेकंड का आंसर पाई का टर्म्स में आएगा क्या? Second का आंसर no. I think Sachin is doing the same mistake, I guess.
सेंटर ऑफ मास चेक करो एक बार. व्हाट इज द सेंटर, वेयर इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ हाफ डिस्क? इज इट एट व्हाट हाफ? आई थिंक बहुत लोग हाफ डिस्क और हाफ रिंग में कंफ्यूज हो रहे हैं. हाफ रिंग का कहाँ होता है सेंटर ऑफ मास? जल्दी बताओ. 2r by pi. 2r by pi पे. हाफ डिस्क 4r by 4r by 3 by 5. 4r by 3 pi. यस, मुझे काफी आंसर्स देख के लग रहा है कि शायद 2r by pi गलती से तुमने यूज किया है. 0.5 centimeters. No, that's not correct. कोई दिक्कत नहीं, कीप ट्राइंग. क्वेश्चन हमसे हो या ना हो, we have to try and try our best. Because the difference that I've seen in achievers and general students is all about the effort that they put in. Because बहुत बार मैं classes में, when I used to take the topper batches, तो मैं classes में कोई question देता था. क्वेश्चन देने के साथ मुझे पता होता था कि ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है एंड इट इज वेरी अनलाइकली कि कोई इसे सॉल्व कर पाए. लेकिन मैं वही देखना चाहता था कि हाउ पीपल आर रिएक्टिंग टू इट. समटाइम्स आई गिव सच क्वेश्चंस, सो आई कुड सी सम सर्टेन पीपल क्वेश्चन पढ़ने के साथ ही इधर उधर देख रहे हैं, बगल वाले का देखने का ट्राई कर रहे हैं कि वो क्या कर रहा है, या फिर बगल वाले से बात कर रहे हैं, या फिर कुछ भी कर रहे हैं. एंड देयर वर पीपल हु यूज्ड टू गिव देयर बेस्ट. मैं उन्हें देख रहा हूँ कि वो परेशान हो रहे हैं. सुबह से स्कूल वो भी गए हैं, क्लासेस उन्होंने भी की है. ये आखिरी क्लास है, आखिरी क्लास के आखिरी आधे घंटे में बहुत परेशान करता हूँ लोगों को, just to inculcate a very good habit in you. That is because you need to perform well under pressure. IIT JEE में जो JEE एडवांस होता है उसका आखिरी 1 घंटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है. And as per my belief, that segment of the exam gives you the rank. उसके पहले तुम एग्जाम क्लियर कर रहे होते हो. आखिरी उस 1 घंटे में अपने कंपोजर को बना कर रखना होता है. So you can do well only if you train yourself to do well. Miracles don't happen overnight. That was an indirect training. जो difficult questions when you are the most tired. I have this quote written on my on my wall as well, my room के. मोहम्मद अली ने कहा था that start counting when it begins to hurt. Right? Exercise में he used to count जब बॉडी में पेन होना शुरू हो जाए. उसके पहले तो तुम ऐसे ही मजे में कर रहे हो. जब थोड़ा सा दिमाग थके उसके बाद काउंटिंग पढ़ाई की शुरू होती है. राइट? सो थोड़ा सा अपने आप को ट्रेन करो, मुश्किल में डालो, थोड़ा थोड़ा कंफर्ट जोन से बाहर जाओ, एंड दैट विल डू मिरेकल्स विद टाइम. ओके, सो कमिंग टू दिस आंसर पार्ट. ओहो, लॉट ऑफ पीपल आर गेटिंग स्टक इन दैट पाई वाला, काफी बड़े बड़े आंसर्स. अच्छा, R 1 सेंटीमीटर किसका ले रहे हो? 1 सेंटीमीटर, एक मिनट 1 सेंटीमीटर इज, अच्छा शायद मैंने यहाँ पे ये लिखा है, दिस इज R. R is the radius of the disc and 1 centimeter is the radius of the portion that you have taken out. ठीक है, शायद मैंने दोनों गलती से सेम आर लिख दिया था, बट एरो बनाया हुआ था. सो दैट इज द पोर्शन, रेडियस ऑफ द टेकन आउट पोर्शन. चलो सेकंड का आंसर चाहिए अब, काफी काफी टाइम हो गया. No, not even 0.9. Pranav, no, that's a big answer. I think you can see question number 2 and give it the answer. इतना इजी क्वेश्चन है ये, तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, एक छोटा सा कैलकुलेशन बस.
Not even 0.5 I've said. 1/4 third का. अच्छा. चलो थर्ड तो मुझे भी सॉल्व करना पड़ेगा, मैंने बस लिख दिया ऐसे ही. गिव मी 2 minutes so that पर मैं किसको कैलकुलेट कर लूं. You might get a quadratic as well. Yes. 1 centimeter. 1 centimeter. No, that's not correct. 7 minus root 13/6. Yes. That's the correct answer. Third one. And Kashish, what about second one? You got the answer? No. Yes, second is 2 centimeter. Srijan, correct. अरे भाई साहब क्या कर रहे हो तुम लोग सेकंड वाले में? सर यूनिफॉर्मिटी देखते साथ ही कर देना. सिंपल. अरे यार ये जो डिस्क है, डिस्क का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा? It should be at 4r/3 pi, isn't it? If r is 1.5 pi, so isn't this center of mass at 2 centimeter? And Yes, the sir. portion that you have taken out, उसका भी center of mass कहाँ पे है? Isn't it at the same point? तो टोटल मास का सेंटर ऑफ मास वहीं पे है, कट आउट पोर्शन का भी सेंटर ऑफ मास वहीं पे है. सेंटर ऑफ मास मूव थोड़ी करेगा. It will remain at 2 centimeters. Simple. Because for this cutout portion, the center of mass should be at the geometrical center. इतना simple है. Hemisphere? No. I've written half disk. ठीक है. तो पहली बात क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है. एंड बहुत ज्यादा अगर कॉम्प्लिकेट हो रहा हो सोल्यूशन, सो एक बार अपने सोल्यूशन को चेक करो. In most of the cases in physics, normally those very complicated solutions are avoided in competitive exams because एक क्वेश्चन को करने के लिए 2 से 3 मिनट होते हैं. सो उस 2 मिनट में तुम्हें क्वेश्चन पढ़ना भी है, सॉल्व भी करना है. सो इट्स नॉट फिजिबल कि तुमसे वो बहुत लंबा कैलकुलेशन कराए. और कोई बहुत लंबा कैलकुलेशन अगर सही में है तो उसको छोड़कर निकल जाओ, बिकॉज दैट विल किल अ लॉट ऑफ टाइम जिसमें तुम बाकी इजी क्वेश्चंस कर सकते हो. राइट? ठीक है. कमिंग टू द स्क्वायर प्लेट सेटअप, जल्दी. Six minus 2√3. Okay. 6 minus 2√3. I think एक बार चेक करो.
1/2. No, not 1/2. जल्दी, 1 more minute. Okay, so I can take this as a complete square minus an isosceles triangle. Mass per unit area. Let me say that mass per unit area is sigma for this setup. ठीक है, तो मैंने यहाँ पे जो स्क्वायर बनाया, what is the mass of the square? Mass of the square would be sigma into L square. जो यहाँ पे ट्रायंगल हमने बनाया, what is the mass of the triangle? This is, the height is x, the base length is L, so that is sigma into area, half into base into height. And by the way, this is negative mass क्योंकि हमने इतने पोर्शन को यहाँ से बाहर किया है. ठीक है, we'll put that as negative. बढ़िया. So taking this as 0,0, इसका सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा? It is at 0, L/2. And for a triangle, where is the center of mass? Can you tell me? At the centroid. और centroid कितनी हाइट पे होता है यहाँ से? बेस से 1/3. 1/3 height. Yeah. X as the side length. No. X is the height. X is the height. This thing. Okay. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. Even if you have taken that as a side length, तो सही कर सकते हैं उसको. ठीक है. तो यहाँ पर हमें करना क्या है? We just need to y center of mass, y coordinate of the center of mass would be x, जिसकी वैल्यू हो जाएगी सिग्मा L square m1 into y1. इसका y कोऑर्डिनेट है L/2 माइनस सिग्मा Lx/2, मास ऑफ द ट्रायंगल हो गया. ट्रायंगल का सेंटर ऑफ मास कहां पे? x/3 पे, डिवाइडेड बाय सिग्मा L स्क्वायर माइनस सिग्मा Lx/2. ठीक है, सो आई थिंक सिग्मा L ऊपर नीचे से कैंसिल हो जाएगा, सो इट कैन गेट सिंप्लीफाइड इवन फर्दर. सो दिस विल बी L स्क्वायर बाय 2 और सेकेंड वाले में हो जाएगा Lx/6 डिवाइडेड बाय L माइनस सिग्मा L चला गया ना, x/2 बचा. Lx square. So L gets cancelled uh, in Lx/6. Lx/6 में what has been, अच्छा x square, sorry I missed. Yeah, yes, sir. Should be x square. Should be x square. Fine, thank you. तो यहाँ पर हमें मिल रहा है this is Lx minus x square by 2 on cross multiplying. This is L square by 2 minus x square by 6. ठीक है, तो ये हो जाएगा, x square को एक साइड भेजोगे, so this is x square by 3 माइनस हो गया Lx
एंड प्लस एल स्क्वायर बाई 2। ये क्वाड्रेटिक है जो हमें मिल रहा है, एंड यहीं से हमें इसके लिए सॉल्व करना पड़ेगा। सो एक्स की वैल्यू हो जाएगी माइनस की मतलब एल, प्लस ही लेंगे अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब एल स्क्वायर माइनस 4 1/3 इंटू एल स्क्वायर बाय 2 डिवाइडेड बाय 2/3। ये चेक करो ये किसका आ रहा है। वी गेटिंग व्हाट 2/3, तो एल कॉमन 1 प्लस 1/रूट, अच्छा मतलब माइनस चाहिए, प्लस माइनस ले लेते, देखते कौन सा आएगा। एक तो नहीं हो सकता, वो हम चेक कर लेंगे। ठीक है, सो इज इट करेक्ट टिल नाउ? कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? बताते रहना मुझे। आई होप दिस इज फाइन। एल स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, ठीक ठाक चल रहा है अभी तक। सो वी आर हैविंग व्हाट 3 से अगर मतलब, अच्छा 1 प्लस वाला यहाँ पर मतलब ये हो गया 3l/2, ठीक है, इंटू 1 प्लस 1/√3 तो नहीं ले सकते हम, इट हैज टू बी 1 बिकॉज वो फिर x कैनॉट बी ग्रेटर देन l, राइट? सो प्लस वाला वैल्यू यहाँ पे हम इग्नोर करेंगे, एंड फ्रॉम दिस वी गेट द वैल्यू ऑफ x by l as 3/2 into 1 minus 1/√3। This is correct. 7 तो नहीं आ रहा है, probably कुछ calculation error होगा फिर। Please check if you are getting this. 3 into √3 minus 1/2√3। किसी ने आंसर किया था ये? ये आंसर तो नहीं दिख रहा है। नो, जो आंसर मैंने सही कहा था उसमें कुछ गड़बड़ है। ओके, इसको सिंप्लीफाई ठीक है कर सकते हो, if you wish you can simplify that, but I hope you are getting till this point. सर डिस्क्रिमिनेंट में 2/6 आएगा, डिस्क्रिमिनेंट में 2/6 आएगा, 12²/6। अब b स्क्वायर माइनस 4a, ओके वो स्क्वायर रूट वाला पार्ट में बोल रहा स्क्वायर रूट वाले पार्ट में 12²/6। कौन सी लाइन की बात कर रहे हो? इज इट द सेकंड लाइन, ये वाला यहाँ पे? यस सर। ओके 4 तो 2 गया, तो नहीं, आई थिंक ये l स्क्वायर में 3 हो रहा है ना, l स्क्वायर में 3 सर, ठीक है। l/√3 बाहर आएगा, ठीक है सर। ठीक है ना? ओके ठीक है, ठीक है, यू कैन राइट इट दैट वे एज वेल। मतलब तुमने 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड, ठीक है, मैंने देख लेना इसको, और अगर सिंप्लीफाई करके योर आंसर इज गेटिंग दिस थिंग तो सही है। इसको बहुत तरीके हैं, बहुत तरीकों से लिख सकते हैं, तो ठीक है। आई होप यू गॉट द पॉइंट, कैसे करना है इसमें। ऑलराइट, सर ये सिग्मा स्क्वायर वाला क्या? सिग्मा एल स्क्वायर क्या था? सिग्मा मैंने कहा कि दैट इज द मास पर यूनिट एरिया, तो इस स्क्वायर के लिए हम एरिया कितना लिखेंगे? एल स्क्वायर ना, सो द मास पर यूनिट एरिया वाज सिग्मा। तो स्क्वायर का अगर हमें मास निकालना होता तो मैं सीधा कह सकता था दैट इज सिग्मा इनटू एल स्क्वायर। ठीक है, ओके फाइन। तो ये तो था सेंटर ऑफ मास वाले सेटअप। इन केस देयर इज कैविटी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेटअप्स विद कैविटी। कुछ कैविटी होते हैं जिनको डील करना काफी इजी होता है, कुछ केसेस में हमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम भी कैविटीज को डील करने में हो सकती है, बट स्टिल विल ट्राई कि कोई भी प्रॉब्लम ना हो। जैसे मान लो मैं एक सिंपलेस्ट
पॉसिबल केस लेता हूं. से देयर इज अ डिस्क ऑफ मास m, रेडियस r. ठीक है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम इस एक्सिस के अबाउट जानते हैं. मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा इस एक्सिस के अबाउट? दैट इज mr square by Square by 4. 4, because mr square by 2 is about the center of mass axis, and कोई भी दो डायमीटर ले लो, you can apply perpendicular axis theorem. mr square by 4. ठीक है, मैंने कहा अगर मैं इसमें से एक पार्ट को कट आउट कर दूं, say that part has got a radius of r by 2. अगर मैं इतने पार्ट को माइनस कर दूं, so can I say that ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे मिल रहा है mr square by 4, this is due to इसमें कटआउट पोर्शन प्लस remaining mass. This is the cutout portion and this is the remaining mass. ये दोनों के कंट्रीब्यूशन से बना है mr square by 4. Can I say that? Right? Yes. So we can say that ये जो कटआउट पोर्शन है, तो हमारा फंडा क्या होगा यहाँ पे? अगर हमें रिमेनिंग पोर्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा? जो मतलब ये जो एक्चुअल मोमेंट ऑफ इनर्शिया था बिफोर द बॉडी वाज कट आउट, उसमें से मुझे ये कट आउट पोर्शन के कंट्रीब्यूशन को माइनस करना होगा. बट एक चीज हमेशा ध्यान में रखना, whenever you are adding or subtracting मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमेशा एक ही एक्सिस के अबाउट होना चाहिए. ठीक है, हमेशा वो एक ही एक्सिस के अबाउट होना चाहिए. ये यहां पे पता नहीं चलेगा तुम्हें, बट जो हम नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे वहां पे हमें दिखेगा. तो जैसे मान लो मुझे इसमें पूरे डिस्क का मुझे पता था, मुझे कटआउट पोर्शन का कंट्रीब्यूशन निकालना है. हाउ मच विल दिस बी? r by 2 रेडियस का अगर मैं मास निकालना चाहूं, व्हाट इज द मास? m by 4. एग्जैक्टली, इट इज into pi r by 2 का स्क्वायर, which is m by 4. जो भी ये मास था, दिस मास into इसका जो भी रेडियस, मतलब बिकॉज नाउ यू आर डीलिंग विथ अ पार्ट जिसका मास है r by 4 और जिसका रेडियस है r by 2. सो मास m by 4 और जो भी रेडियस है उस रेडियस का स्क्वायर करके डिवाइडेड बाय 4 हम यहाँ पे कर देंगे. Right, and I can clearly see that this value is what? This value is mr square by 64. yeah, mr square by 64. ठीक है, तो यहाँ पर ना हम एक और चीज यहाँ पे थोड़ा सोच सकते थे. ऐसे सेटअप्स में ना, अगर मुझे कभी चलो यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो कैलकुलेट हो गया, I can also find the moment of inertia of the remaining portion. That would be what? mr square common 1 by 4 minus 1 by 64. I guess it is 15 by 64, is it? Yes, sir. So this was quite easy. इसमें कुछ ज्यादा हमें प्रॉब्लम नहीं हुई. अच्छा, लेकिन बहुत बार क्या करता है ना, बहुत बार तुम्हें ऐसे दे देगा that जो रिमेनिंग पोर्शन है ना, the remaining portion has got a mass that is m. The inner radius is r by 2. The outer radius is r. So what do you think in this case? How can we proceed? कभी कभी ध्यान से पढ़ना सवाल को. कभी बोलेगा कि पहले मास m था, उसमें से हमने कुछ पोर्शन काट के बाहर कर दिया, और फिर कभी कभी बोलेगा कि ये काटने के मतलब जो कटआउट पोर्शन था उसको हमने निकाल दिया, एंड व्हाट रिमेन्स इज कैपिटल. इन दिस केस व्हाट रिमेन्स इज कैपिटल M.
हाउ टू डील विद दिस केस, जल्दी बताओ। सर Surface होल का mass. सर होल का 4m/3 होगा और जो बीच वाला है उसका m/3 होगा। एग्जैक्टली ऐसे केसेस में क्या करो ना, assume that the total mass is m1। जिस पोर्शन को तुम बाहर करोगे ऑफ रेडियस r/2 उसका मास कितना होना चाहिए था, m1/4। and what is the remaining mass? Is it the remaining mass? and question इससे m बोल रहा है, तो क्या मैं यहां से m1 सीधा निकाल ही लूंगा, और जो रिमेनिंग मास है वो कितना हो जाएगा, m/3। Is it? और जैसे तुम्हें ये पता चल गया तो मतलब इसका मुझे पता है, मैं क्या करूंगा ना, मैं m1 के टर्म्स में आंसर निकालूंगा, क्योंकि मुझे m1 के हिसाब से आंसर निकालना इजी रहेगा। m1 के हिसाब से द आंसर वुड बी व्हाट, 15/64। 15/64 m1 into r²। और मैंने ये निकाल लिया, फिर मैं m1 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूंगा, दैट वुड बी 4m/3 into r²। सो अब देख लो कितना हो गया, दिस इज व्हाट 5/16, राइट? 5/16 mr²। ठीक है, सो डू यू अंडरस्टैंड दीज टू वेरिएशंस, कैसे क्वेश्चन डिफरेंट तरीके से पूछा जा सकता है। Yes, sir. Yes, sir. एवरीवन इज क्लियर? Yes. ओके गुड। चलो लेट्स मूव ऑन टू अ डिफरेंट वेरिएशन, कैविटी सेटअप का। दैट वेरिएशन इज, मैं नॉर्मली मैं डिस्क ले रहा हूं, चलो एक हम स्फीयर भी ले लेते हैं, सो दैट इट्स easier for us to handle. This is a solid sphere. ठीक है, इस सॉलिड स्फीयर में हमने क्या किया, मैं थोड़ा कन्वीनियंट कैविटी बना रहा हूं, कैसे भी हो सकती है, तो बट इफ यू लर्न दिस यू कैन इजीली हैंडल दोस केसेस। मान लो हमने यहां पर एक कैविटी कट करके बाहर कर लिया, कैविटी कुड बी ऑफ सम अदर रेडियस एज वेल, बट जो भी है हमने ऐसा देखा यहां पे, दिस कैविटी हैज बीन कट आउट। ठीक है, एंड ये दिया हुआ है रिमेनिंग मास इज n, सॉलिड स्फीयर का जो रेडियस है दैट इज r। you have to figure out what is the moment of inertia about this axis. Okay, यहां पे भी क्या फंडा होगा, you will write I as what, I total minus I cut out। कैविटी अगर नहीं होती, कैन यू क्विकली टेल मी, मान लो मैं कह देता हूं कि ये जो पूरा स्फीयर होता ना, इस पूरे स्फीयर का मास मैं कहता हूं m1। टेल मी फास्ट, व्हाट इज द मास ऑफ द कट आउट पोर्शन, जल्दी। m/8 m1/8. m1 सर कटआउट का रेडियस मतलब ये यहाँ टच कर रहा है, so half the radius would be, so m/8. it would be m1/8, right? Yes, sir. And the first thing that we would write is what, m1 minus m1/8 is m, so this comes out to be 8m/7, जिसको मैं बाद में यूज कर लूंगा, और ये आ रहा है m/7। सर 7m/8 आएगा ना? नो 8m/7, देखो यहाँ से m1 minus m1/8 is capital M, so you're getting m1 as 8m/7। ठीक है ठीक है। ठीक है, सो आई मतलब यहाँ पे अगर हम चेक करें, सो टोटल मतलब जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, कैन आई से द टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर अ सॉलिड स्फीयर, मैं अभी m1 यूज कर रहा हूँ, आई एम सेइंग दिस इज m1, r 8m/7 हम बाद में लिख देंगे। कैन आई से टोटल के लिए इट इज 2/5, सॉरी m1 r² minus I due to the cutout portion, right?
यस सर। अच्छा जल्दी बताओ, मैं आई ड्यू टू कटआउट पोर्शन को मैं लिख रहा हूं 2/5 m1/8 into r/2 का स्क्वायर। एम आई करेक्ट और इनकरेक्ट? Correct. सर इनकरेक्ट। सर गलत। सर गलत है गलत क्यों लग रहा है, जल्दी बताओ। सर, क्योंकि जो एक्सिस के अबाउट निकालना है वो ये एक्सिस अलग है. एक्सिस सेम नहीं है। एग्जैक्टली जिस Plus एक्सिस के अबाउट हमें चाहिए। यस गॉन। plus m1/8 into r/2 square. ये जो मैंने निकाला ये कौन से एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है? ऑब्वियसली आईसी के अबाउट तो नहीं है। Center of mass. हाँ, ये जो मैंने Of the मोमेंट ऑफ cutout. इनर्शिया निकाला है दिस इज अबाउट द डायमीटर एक्सिस ऑफ द कटआउट पोर्शन। मुझे ये तो नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम से इसे मुझे इसको पैरेलल एक्सिस थ्योरम से शिफ्ट करना होगा, राइट? कैसे करेंगे शिफ्ट? प्लस m1/8 into r/2 square. यस इट इज m1/8 जो भी मास था इनटू डिस्टेंस। कितना गैप है ये? r/2 ना। अब फाइनली हमें मिल रहा है दिस इज 7/5 m1 r स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना हो गया 32। अब हमें आईसी को इससे रिप्लेस करना पड़ेगा सो दैट वैल्यू शुड कम आउट टू बी, ठीक है मैं पूरा सॉल्व नहीं करूंगा। दिस इज 2/5 m1 r स्क्वायर माइनस कितना करेंगे 7/160 इज इट? Yes sir. ये and we can put the value of m1 which is 8m/7 and we can get the answer. Are you all understanding the logic? Yes sir. ठीक है। ओके तो क्वेश्चन है दैट देयर इज अ सिलेंडर जिसको हमने आवर ग्लास के शेप में कट किया है, राइट? मास इज प्रेजेंट इन दिस पोर्शन, बाकी पोर्शन इससे बाहर हो गया। दिस is given as 2r, sorry, this is given as r and this is given as r. This radius right here is given as r and you need to tell me what is the moment of inertia about this axis given that mass of the remaining portion is given as capital M. Think and tell me. This will require you to remember the moment of inertia of a solid cone. याद है किसी को? थ्री बाई 10 MR स्क्वायर। ठीक है तो सोचो इसको कैसे हम रिमेनिंग मास को कैसे यूज करेंगे। यहाँ पे सिलेंडर से हमने दो कोन काट के बाहर कर लिए दोनों साइड से। बिट कॉम्प्लेक्स डायग्राम बट कर सकते हो आराम से सोचो एंड लेट मी नो द आंसर। जो बाय द वे विल द वेयर विल बी द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस सिस्टम? 0,0. या मतलब जहां पे दोनों कोन का वर्टेक्स टच कर रहा है, बिकॉज ये सिमेट्रिकली हमने काटा है ना, सो दैट वुड नॉट अफेक्ट इट।
देखा ना, केसेस को कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, सिंप्लीफाई करके देखो। Getting one answer? थोड़ा सा मैं आंसर को होल्ड पे रखूंगा. Let me see what the majority gets. आप muted. सर आपका माइक ऑफ है. Oh, sorry. My mistake. Okay. चलो मैं रिपीट करता हूँ इसको.
ठीक है, लेट मी ड्रॉ इट अगेन. व्हाट आई वाज सेइंग, सर कि हमने फाइनल आंसर क्या है? इसका आंसर मैं बताता हूँ. लेट मी सॉल्व इट विथ यू. मैंने बस क्वेश्चन दे दिया था, so थोड़ा कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन है, सो इवन आई डोंट नो द आंसर. मान लो मैंने कहा टोटल मास इज m1, ठीक है, और जो एक कोन मैंने यहां से कट करके बाहर निकाला, दिस कोन हैज अ मास ऑफ स्मॉल m. सो स्मॉल m की वैल्यू कितनी होगी? इट इज m1 बाय टोटल वॉल्यूम. टोटल वॉल्यूम इज पाई r स्क्वायर इंटू हाइट. हाइट इज 2r इंटू एक कोन का वॉल्यूम, सॉरी ये सिलेंडर का वॉल्यूम है, और कोन का वॉल्यूम हो गया 1/3 पाई r स्क्वायर इंटू h. तो यहां से हमें मिल रहा है इट इज m1 बाय 6. इज इट? लुक सो, बिल्कुल. रिमेनिंग मास आई कैन से, रिमेनिंग मास क्या होगा? इट इज टोटल मास माइनस 2 कैविटी हमने बाहर किया ना, so this is 2m1 by 3. So यहां से m1 की वैल्यू आ जाएगी 3m by 2. Is it? m1 Yes, की sir. वैल्यू है 3m by 2. ठीक है, इसको हम अभी डाल देते हैं कोल्ड स्टोरेज में. विल बी यूजिंग इट. तो पूरे सिलेंडर के लिए अगर मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखूं, अगर पूरा का पूरा सिलेंडर होता, तो मुझे पता है दिस इज सिंपली द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर, सो इट शुड बी m1 into r square by 2 माइनस, क्या मुझे दो कोन के लिए, दोनों कोन का सेम ही होगा ना, जितना इसका होगा उतना इसका भी होगा, तो मैं दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहां पर माइनस करूं, व्हाट वुड दैट बी? 3/10 mass of the cone, which is small m, m1 by 6 into कोन का रेडियस r ही है, so r square, right? so 1/2 minus 1/10 मतलब 0.4 हो गया. 0.4 मतलब कितना हो गया? 2/5. 2/5. 2/5 होना चाहिए. 1/2 minus 1/10, 4/10, हाँ 2/5, ठीक है. 2/5 m1 into r square. What is m1? m1 हमने कैलकुलेट किया 3m/2 into r square. So the final answer is 3mr square by 5. There are a lot of people probably जिन्होंने आंसर दिया है. So let me check from the beginning. 3/5 सबसे पहले मयंक ने दिया. मयंक, the answer is correct. अविचल had given the same answer. Very good. अविचल के बाद शशांक ने आंसर किया था. अविचल ने फिर से आंसर किया था, प्रोबेबली मैंने देखा नहीं था. सृजन थोड़ा गड़बड़ हो गया था. I think you were very close to the answer. I think, have you missed something very small, I guess? Have you not taken 1/3 somewhere? Because 9/5 आ रहा है. सर वो मैंने आई का मैंने एक कोण के लिए सब्ट्रैक्ट किया था. दो कोण. Okay, get it. Apart from that, इतने लोगों ने सही आंसर किया था. ठीक है. So I hope you can handle such cases now. ऐसा मिलेगा तो? यस सर. ठीक है, आइडिया लग रहा है ना? तो ऐसे वाले केसेस जिन्होंने तुम्हें कभी परेशान किया होगा पहले, एक बार उन सारे केसेस को ढूंढ के निकालो और दोबारा सॉल्व करने की कोशिश करो. You can very easily handle these questions now. I'll extend this by just a bit and अभी मैं कैविटी के बाहर फील्ड निकालना सिखाता हूँ. कैविटी के अंदर जो फील्ड होता है, आई शैल डिस्कस दैट एट द बिगिनिंग ऑफ आवर नेक्स्ट क्लास. नहीं तो काफी लेंदी हो जाएगा क्लास. सो लेट मी डिस्कस अ स्मॉल केस, और आज के लिए उतना ही रहेगा. सो वी आर टॉकिंग अबाउट ग्रेविटेशनल फील्ड in the case of cavity, spherical cavity to be precise. ठीक है. तो spherical cavity वाले केस में we will try to figure out the gravitational field. अब कैविटी
जब भी बनती है ना तो नॉर्मली स्फेरिकल ही होती है। स्फेरिकल ना हो तो लाइफ विल बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर अस, बट ठीक है, और भी कुछ केसेस होते हैं जहां पे मैं नॉन स्फेरिकल कैविटी के लिए भी क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ, बट ठीक है, फिलहाल हमें इतनी जरूरत नहीं है। सो मान लो यहाँ पे हमने कैविटी बनाया, ठीक है, एंड वी आर एक्सपेक्टेड टू फाइंड द ग्रेविटेशनल फील्ड एट सम पॉइंट पी, राइट। तो इस पॉइंट पी पे जो नेट ग्रेविटेशनल फील्ड होगी, दिस नेट ग्रेविटेशनल फील्ड वुड बी व्हाट? आई कैन से, मैं यहां पे अज्यूम कर सकता हूं मेरे लिए स्फीयर, इस ट्रंकेटेड स्फीयर को हैंडल करना पूरा डिफिकल्ट है। अगर मुझे ये स्फीयर में कैविटी है ना उसकी वजह से निकालने पूछते, आई डोंट नो एनी सच फॉर्मूला, मुझे नहीं पता फॉर्मूला, लेकिन मैं दोनों स्फीयर को एक एक करके लूं, देन आई कैन इजिली हैंडल दिस केस, राइट। मैं यहां पे क्या कर सकता हूं, आई कैन से, अगर मेरे पास दो दो स्फीयर होते तो मैं आराम से यहां पर फील्ड कैलकुलेट कर सकता हूं। व्हाट विल आई डू? आई विल राइट द फील्ड, आई नेट वुड बी व्हाट? आई नेट वुड बी जो भी फुल बॉडी होता उसकी वजह से मैं ग्रेविटेशनल फील्ड कैलकुलेट करता, और उसमें से कैविटी में जितना मास प्रेजेंट है उसके कंट्रीब्यूशन को हमें माइनस कर देना है। सिंपल सी बात है, क्योंकि इतना मास अब नहीं है, तो उस मास ने बोला भाई जितना मेरा फील्ड था दो, मैं जा रहा हूं यहां से। हमने कहा ठीक है भाई ले लो, चलेगा, ओके। लेकिन कभी कभार ऐसे केसेस ना लोगों को परेशान कर देते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, डरने वाली बात नहीं है। आई डोंट थिंक कि अगले 5-6 मिनट के बाद बाय 8:15 दीज केसेस वो ट्रबल एवर। सिंपल, हमने अगर ये मान लो एक सॉलिड स्फीयर हमने लिया, ठीक है, इसके वजह से हम फील्ड कहीं भी निकाल सकते हैं। आउटसाइड, मैं आउटसाइड पॉइंट्स की बात कर रहा हूं, इनसाइड पॉइंट आई विल डील इन द नेक्स्ट क्लास। आउटसाइड पॉइंट के लिए आई नो दैट दिस बिकम्स अ पॉइंट मास एट द सेंटर, ठीक है। तो मान लो मैंने एक बहुत ही मतलब हार्मलेस सा कैविटी बनाया, जो कैविटी तुम्हें ज्यादा परेशान नहीं करेगा, इट इज अ कॉन्सेंट्रिक कैविटी, ठीक है। द रिमेनिंग मास इज कैपिटल M, inner radius is R1, outer radius is R2, and the distance between the center and this point is X. Mass is present only in this region. Concentric cavity. Can anyone tell me what would be the field at point P? क्या हुआ? सोचो। नो कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन रिक्वायर्ड। अगर ये पूरा बॉडी होता, कितने रेडियस का? R1 का। मान लो मैं कहता हूं द टोटल मास इज एनीथिंग M1, इसके वजह से what would be the field at P? GM1 by, is it X R1 or R1 square? X square, X square. X square, because बाकी सारा मास सेंटर पे आ जाएगा पॉइंट बन के। मतलब स्फेरिकल सेटअप तो भाई इतने अच्छे होते हैं ना, they'll never give any hard time to you। और ये सब चीजें बहुत जल्दी हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में रिपीट करने वाले हैं। इलेक्ट्रोस्टैट्स में ग्रेविटेशन की बहुत सारी चीजें रिपीट होती हैं। So GM1 square by GM1 by X square is the field due to the entire thing। बहुत बढ़िया। हमने कहा कैविटी है, ब्रिंग इट ऑन। कैविटी ने कहा कि भाई मेरा कंट्रीब्यूशन कितना होगा? हमने कहा ठीक है बताता हूँ, रुक जाओ। कैविटी का मास M2 था, और इस कैविटी को हमें करना पड़ा बाहर। तो अगर सिर्फ कैविटी होती
M2 और R2, what would have been the field at this point? जल्दी बोलोगे? GM2 by X. GM2 by X square. Yes. कैविटी ने कहा भाई आई एम लीविंग, तो जो कंट्रीब्यूशन था मेरा वापस कर दो। हमने कहा ठीक है, तो ले देके कितना बचा? ये बचा। एंड व्हाट इज M1 minus M2? Would you tell me? The remaining mass. Remaining mass, and that remaining mass is capital M. Oh, मतलब ये जो टोटल मास था ये तो सेंटर पे पॉइंट मास बन ही गया। कैविटी ऑल्सो बिहेव्स एज अ पॉइंट मास एट द सेंटर, मतलब टोटल मास कितना हमने माना? M1, ठीक है। कैविटी भी अपने सेंटर पे एक नेगेटिव पॉइंट मास बन जाता है। कैविटी का सेंटर कहां पे होगा? इफ दिस इज अ कॉन्सेंट्रिक कैविटी, वहीं पे होगा ना। क्या जा रहा है? तो हमने कर दिया माइनस M2, मतलब इसके सेंटर पे ही M1 माइनस M2 बन गया। मतलब ऐसे केसेस तो हमारा कुछ बिगाड़ ही नहीं सकते, फालतू का टाइम पास था। आई होप यू आर क्लियर विद दिस। इसी से हम दूसरे केसेस देखेंगे। यू अंडरस्टूड हाउ वी आर डीलिंग विद दिस? Yes, sir. Yes, sir. बिल्कुल, सेंटर पे पॉइंट मास बन गया, Yes, sir. काम खत्म। These setups will never bother us. जल्दी सेकंड वाले पे आते हैं। कैविटी ने कहा भाई आई वांट टू गिव यू हार्ड टाइम, आराम से कॉन्सेंट्रिक कैविटी तुमने निकाल लिया। व्हाट इफ द कैविटी इज नॉट कॉन्सेंट्रिक? कॉन्सेंट्रिक ही नहीं है कैविटी, मैंने R/2 ले लिया है, कैविटी कुछ भी हो सकता है, R/2 R/3। अभी थोड़ा सिंपल लेते हैं, मतलब इसी लाइन के लॉन्ग हमने कैविटी बनाई है, कहीं और भी बना देंगे बाद में, दैट्स ओके। अभी हमने यहाँ पे कैविटी बनाई है और रिमेनिंग मास इज लेट अस से M, ठीक है, एंड द रेडियस ऑफ दिस इज R, एंड ये जो डिस्टेंस है ना, दिस इज लेट अस से 2R। कैन यू टेल मी हाउ टू फाइंड आउट द फील्ड एट दिस पॉइंट P? मैं बोलता हूं दिस इज फील्ड ड्यू टू फुल बॉडी minus the field due to cavity. Do you all agree with this? ये Yes, sir. स्टेटमेंट सही लग रहा है? ठीक है, Sir, स्टेप बाय स्टेप vector- जाएंगे। जल्दी बताओ, व्हाट इज ड्यू टू फुल बॉडी? यू विल टेल मी। GM by 2R square. GM by 4R square. 2R GM का by- होल स्क्वायर. ध्यान से, आई थिंक यू ऑल आर मिसिंग समथिंग रियली इंपॉर्टेंट। M नहीं होगा सर वहाँ। M G होगा। into 8 M by 7 होगा। यस Sir, 8 M by 7. देख रहे हो, छोटी सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, ऐसा ही होता है। वो तो तुम जो बोल रहे हो दैट इज M1 ना, समझ में आ रहा है? कहां Yes, गलती हुई है? sir. Yes, sir. हाँ Yes. बिल्कुल, तो गलती नहीं करनी है। ध्यान से, whenever you write equations, be extremely careful, because एक छोटा सा कैलकुलेशन मिस्टेक can take away all your marks। यहाँ स्टेप मार्किंग नहीं होती है, and that is even worse। जिसको नहीं आ रहा होगा उसने कुछ टिक नहीं किया होगा, that person will get a 0, but you might end up getting -1। You are penalized badly for your mistakes in these competitive exams। थोड़ी गलती हुई, जो खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास थोड़ा बाहर आना। दिस इज अ हिंदी में मुहावरा है। आई होप यू अंडरस्टूड इट्स मीनिंग। तो फुल बॉडी का कितना देखा हमने? G इंटू सीधा लिख दूं 8 M by 7। 8 M by 7. ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड कैसे हुआ ये? Yes. Yes, sir. बहुत बढ़िया। चलो ये हो गया फुल बॉडी का। आई वांट द फील्ड ड्यू टू कैविटी। कौन बताएगा मुझे? G इंटू क्या करें? M by 7. M by 7 या M by 8? M by 7. M by 7। बाकी लोग एग्री कर रहे हैं? M by 7. Yes, sir. M by 7। ओके ओके ओके, चलो मतलब M1 by 8 होना चाहिए था, जो कि यहाँ M by 7 हो जाएगा। बहुत बढ़िया। डिवाइडेड बाय, सही है क्या?
No sir. 2 by 2 distance क्या नहीं है. गलती है? 3r/2 का स्क्वायर 2r minus r/2. बिल्कुल ये गलत है। कैविटी अपने सेंटर पे पॉइंट मास बनता है। बात समझ में आ रही है? कैविटी हमेशा अपने सेंटर पे पॉइंट मास बनेगा। तो कैविटी के कारण हमें फील्ड निकालनी हो तो हमें ये वाला डिस्टेंस चाहिए, which in this case is 2r minus r/2 मतलब 3r/2. You get the point? Yes. और अगर हमें अब पॉइंट पी पे यहाँ मतलब फील्ड निकालनी हो तो क्या हम आराम से फील्ड निकाल नहीं सकते? मान लो मैंने तुमसे यहां पर फील्ड पूछा होता इस पॉइंट पे, क्या तुम बता पाते? जल्दी बोलो। Yes, sir. Yes, sir. बिल्कुल। फुल बॉडी का जल्दी बोलो कितना होता फील्ड एट दैट पॉइंट जो मैंने एरो बनाया? G 8m G by into 7 8m by by 7 r by r square. square. 8m/7 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। बहुत बढ़िया। r स्क्वायर या 2r स्क्वायर? R square. r R स्क्वायर। square. कैविटी का बताओ जल्दी। G into m by 7 by r plus r/2 का square. 5r/2 whole square. डिवाइडेड बाय, बिल्कुल ये वाला गैप मुझे चाहिए। सो दैट इज r plus r/2 मतलब 3r/2। आर यू गेटिंग इट? यस सर। दिस 816, so ठीक है 815 में ये क्लियर हो गया था तुम्हें। बट अगेन एक चीज एक मैं कराऊंगा, देन आई विल से कि आज का क्लास हो गया। दैट इज अगर सेम केस के लिए तुमसे पूछा जाए टेल मी द फील्ड एट दिस पॉइंट, टेल मी यहाँ पे हाउ वुड यू प्रोसीड? Pythagoras theorem. चलो बताओ। आप फुल बॉडी का फील्ड कैसे लिखोगे? G into 8m by 7 by r square. वो तो वही था जो मतलब इसके लिए आएगा। तो g into 8m/7 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। ठीक है, दिस इज I ड्यू टू फुल बॉडी। चलो ठीक है। व्हाट इज I ड्यू टू कैविटी? कैविटी में जो G मास है Root 5r/2 होगा उसका डिस्टेंस. g into कितना मास होता है कैविटी में? m by 7. m/7. बहुत बढ़िया। और डिस्टेंस हम कितना लें यहां से लेके वहां तक? Root 5r/2. रूट 5r/2। 5r square by 7. 4. एग्जैक्टली। तो मैंने कहा कि मैं सीधा दोनों को माइनस कर दूं, आई विल गेट द फील्ड एट पॉइंट पी। करेक्ट और इनकरेक्ट? Incorrect. व्हाई इनकरेक्ट? Field vector है. वेरी गुड। फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो हमें यहाँ पे डायरेक्शन देखना पड़ेगा। अगर मुझे पोटेंशियल निकालना हो तो पी पे जल्दी बोलो, हाउ टू फाइंड द पोटेंशियल एट पी? सब बस सब्ट्रैक्ट कर देंगे. पोटेंशियल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। पोटेंशियल इज सिंपली माइनस जी इनटू व्हाट इज द फुल मतलब फुल बॉडी का मास 8m by 7. 8m/7. डिवाइडेड बाय आर माइनस जी कितना मास होगा ये कैविटी का? m/7। m by 7. एक्चुअली ये माइनस होगा या प्लस होगा सोच के बताओ? Plus. प्लस हो. बिकॉज यू आर माइनस, दो पोटेंशियल को तुम माइनस कर रहे हो। पोटेंशियल इज ऑलरेडी नेगेटिव, तो व्हाट यू आर डूइंग, यू आर subtracting the potential, you're subtracting these potentials. So cavity का जो मास होता उसमें इतना पोटेंशियल होता। So when you actually arithmetically operate करोगे, so this will become plus. यहाँ पे कोई डायरेक्शन का पंगा नहीं है, but in this case you need to take care of the direction, right? अगर सिर्फ कैविटी वाले मास का हम देखें उसके कारण डायरेक्शन ये होगा। अगर मैं फुल बॉडी का देखूं तो डायरेक्शन ये होगा। एंड I'll actually have to apply the vector equations, right? मुझे इसे वेक्टोरियली ऐड करना होगा, एक्चुअली सबट्रैक्ट करना होगा।
एंड दिस एंगल आई कैन फिगर आउट कितना होगा ये एंगल फ्रॉम दिस ट्रायंगल. व्हाट इज tan थीटा? हाफ. half. Exactly. Tan Tan inverse. theta is half. Sec theta is 2 and cos theta is root 3. Cos theta how can be root 3? बोल रहा हूँ. Sec theta is what? Tan theta is 1 by root 2. Sec theta is 1 plus tan square. अच्छा. Root Cos 5 by theta 2. 2 by root 5. Yeah. Sec theta is root 5 by 2. 5 by 2. Cos theta is 2 by root 5. बिल्कुल सही. I hope you can do this, right? Vector form में. Yes. वेक्टोरियली दोनों को माइनस कर देंगे बट इतना नहीं पूछेगा कभी भी. ठीक है. और या अगर कभी पूछे व्हाट इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट, यू कैन टेक द कंपोनेंट ऑफ आई कैविटी इन बोथ द डायरेक्शंस. एक्चुअली आई कैविटी को हमें माइनस करना होगा, सो तुम्हें माइनस आई कैविटी यहां पे लिखना होगा और इन दोनों का हमें वेक्टर मतलब रिजल्टेंट लेना पड़ेगा व्हिच विल बी समवेयर इन दैट डायरेक्शन. डू यू गेट द लॉजिक एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. आई होप यू कैन हैंडल दीस केसेस नाउ. एचसी वर्मा ने एक क्वेश्चन दिया है कैविटी पे, देखे हो? या तुमने जहां से क्वेश्चंस किए होंगे कहीं बुकलेट में कहीं पर भी कैविटी वाले जो भी क्वेश्चंस दिखे देख के आज ही कर लो. एंड आई एम वेरी श्योर दैट यू कैन डू दिस. एचसी वर्मा में एक क्वेश्चन है. आई वांट यू गाइस कि अगले 10 मिनट में क्लास नहीं होगी बट यू ओपन एचसी वर्मा. ग्रेविटेशन में एक कैविटी वाला क्वेश्चन है, ठीक है? उसको कर लो. हाँ उसी में कहीं पे उसको अभी भी कर लो. दिक्कत होगी मुझसे पूछ सकते हो बट आई थिंक आज के लिए काफी है. सो लेट्स एंड इट हियर. और अगली क्लास में वी विल स्टार्ट विथ जो मैंने बताया था कैविटी के अंदर का सेटअप, उसके अंदर जो फील्ड निकालनी है एंड उसके बाद हम लोग देखेंगे कौन सा सेटअप बचा है. लेट मी जस्ट गिव मी अ मिनट. उसके बाद अच्छा हाँ हमने एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, उसमें काफी लोगों को दिक्कत होती है. सो विल टेक अप दैट कॉन्सेप्ट. ठीक है, चलो फिर. थैंक यू फॉर योर पेशेंस एंड फॉर स्टेइंग अप टिल नाउ. ऑलराइट, वेलकम. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. वेलकम. चलो नेक्स्ट क्लास कब है अपना? कल होगा सर. ओके चलो तो ठीक है. आई मीन जो भी मतलब और हाँ आई वेरी सून मेक एन अनाउंसमेंट रिगार्डिंग द ओरिएंटेशन क्लास. या I'll make an announcement regarding an orientation class जो मैं तुम्हारे ग्रुप पे डाल दूंगा. जो क्लास 12th का कोर्स which I'm going to start, I'll actually have an orientation class on 6th of May. So जो भी interested है आ सकते हैं. They can know about how the course will function for the whole year. या फिर तुम in Sir, case next class 6 तारीख को है. 6 को है ना, तो 6 तारीख को ही ओरिएंटेशन क्लास होगा क्लास के पहले. ठीक है, मैं वो लिंक वगैरह डाल दूंगा. जो भी इंटरेस्टेड है वो उसमें अटेंड कर सकते हैं. सो दैट यू ऑल्सो इवन इफ यू आर नॉट एनरोलिंग कोई दिक्कत नहीं है. यू विल ऑल्सो नो हाउ टू अप्रोच क्लास 12th. हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए या फिर तुम दूसरे सब्जेक्ट्स में भी उस अप्रोच को लगा सकते हो. ठीक है, ओके. मैं जल्दी लिंक उसके लिए दे दूंगा. सर आज जीमेल में लिंक नहीं आया. जीमेल पे नहीं आया था. कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, होगी. चलो ठीक है, नेक्स्ट टाइम भी इसलिए मैं पूछ लेता हूँ पहले. अगर नहीं आया तो मुझे बता देना तो मैं सेपरेटली भेज दूंगा. ठीक है.